Alright, let's get straight into it. Welcome to today's explainer, जहां हम एक genuinely fascinating topic को break down करने वाले हैं। अगर आपने कभी सोचा है कि exactly how electricity works, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम एक detailed, super efficient study session conduct करेंगे directly from some brilliant handwritten notes. Ever wondered what actually happens inside a wire exactly when you flip a switch? ये क्वेश्चन लगता तो सिंपल है राइट, बट द आंसर रिवील्स अ होल हिडन वर्ल्ड। और आज हम एग्जैक्टली यही करने वाले हैं। हम इन हैंडरिटन नोट्स को डिकोड करेंगे, एकदम बेसिक्स से लेकर कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज तक। वी आर गोइंग अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टुगेदर। क्विक लुक एट आवर रोड मैप फॉर टुडे। हम ट्रैक करेंगे इस जर्नी को फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मूविंग इनटू करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, देन Ohm's law and resistance, practical tools like ammeters and voltmeters, और finally wrap up करेंगे with the heating effect and power. Starting off with section 1, basics of electric charge. अब हम microscopic world में transition कर रहे हैं, क्योंकि बिना charge को समझे electricity को समझना is practically impossible. So what exactly is the basic definition here? इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे वो दूसरे सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट या रिपेल करता है, डिनोटेड बाय कैपिटल Q. नोट्स के अकॉर्डिंग द रूल इज सुपर सिंपल। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर और ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। जस्ट थिंक ऑफ इट लाइक मैग्नेट्स बट ऑन अ टाइनी एटॉमिक लेवल। Now the real crucial point is how we actually measure this charge. यहाँ आता है quantization of charge का concept. Formula है Q equals NE. इसका सिंपल मतलब ये है कि चार्ज हमेशा टाइनी पैकेट्स में आता है, which are basically electrons. तो अगर आपको टोटल नेट चार्ज यानी Q निकालना है, it is just the number of electrons, जो N है, multiplied by the charge of one single electron, जो कि E है. It's literally like counting apples in a basket. The total weight is just the number of apples times the weight of one apple. Moving to section 2, current and potential difference. अब टाइम आ गया है उन static charges को actually move करने का, because motion is where the magic happens. Let's connect the dots here. Step 1, we have our charge Q. Step 2, हमें पता है कि ये electrons के quantized packets में है. And step 3, जब ये charge flow करता है over time, हमें मिलता है electric current, denoted by I. So the formula becomes I equals Q divided by T. Imagine water flowing through a pipe. जितना पानी एक पॉइंट से एक सेकंड में गुजरता है, that is exactly your current. यहाँ पानी इलेक्ट्रॉन्स हैं और पाइप हमारा वायर है। लेकिन ऑब्वियसली वो पानी या इलेक्ट्रॉन्स अपने आप तो फ्लो नहीं करेंगे ना, राइट? उन्हें एक पुश चाहिए, और यहीं पर एंट्री होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, जिसे हम ब्रॉडली वोल्टेज कहते हैं। Just think of it like a water pump. The pump literally does the work to push the water. Similarly, voltage is the amount of work done, which is W, to move a unit positive charge, which is Q, from a higher potential to a lower potential. इसलिए V equals W divided by Q. Now pay close attention here, क्योंकि ये literally एक exam favorite definition है, straight out of the source notes. What exactly is 1 volt? Well, जब exactly 1 joule of work is done on a 1 coulomb unit positive charge to move it from one point to another, then हम कहते हैं कि potential difference is 1 volt. बहुत simple और straightforward definition है, but absolutely crucial for everything else we're gonna cover. Section 3, Ohm's law and resistance. Now this raises an interesting question. क्या होता है जब हमारे इन flowing electrons को वायर के अंदर अचानक obstacles face करने पड़ते हैं? Let's find out. And here is the big one, Ohm's law. ये law clearly state करता है कि voltage is directly proportional to current. Basically, जितना बड़ा water pump यानी voltage, उतना ज़्यादा water flow यानी current. पर एक catch है. Formula है V equals IR. So ये R क्या चीज़ है? R is resistance. अगर करंट पाइप में फ्लो करता हुआ पानी है, तो रेजिस्टेंस उन रॉक्स या पेबल्स की तरह है जो पाइप के अंदर पानी का फ्लो ब्लॉक करते हैं। It literally opposes the flow of electrons. So exactly किन चीज़ों से ये रेजिस्टेंस बढ़ता या घटता है? The notes give us a really clear list of factors. The formula is R equals rho times L over A. मतलब अगर वायर लंबा है यानी लेंथ L ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स को लंबा रास्ता क्रॉस करना पड़ेगा, which means way more resistance. अगर वायर पतला है मीनिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया A कम है तो पास होने की जगह कम है, राइट? अगेन मोर ऑपोजिशन. द मटीरियल itself matters too, जिसे हम रेजिस्टिविटी या रो कहते हैं. एंड फाइनली टेम्परेचर भी एक मेजर फैक्टर है जो एटम्स को वाइब्रेट करवाता है, फर्दर obstructing the flow. On to section 4, ammeters and voltmeters.
Let's shift gears to practical tools और देखते हैं कि हम इन invisible forces को एक actual circuit में measure कैसे करते हैं. So here we have a really crisp direct comparison between our two main measuring devices. Ammeter current measure करता है और क्योंकि सारा current इसके थ्रू पास होना चाहिए, it is always connected in series. इसका ideal resistance 0 होना चाहिए ताकि ये flow को रोके नहीं. On the flip side, voltmeter voltage measure करता है. ये हमेशा parallel में connect होता है. इसे infinite resistance चाहिए क्योंकि इसका काम strictly सिर्फ potential difference देखना है. It shouldn't steal any current from the main circuit. It's just a beautifully logical engineering design. और अब आते हैं अपने ग्रैंड फिनाले पर. Section 5 Heating Effect and Power. So क्या होता है जब ये सारी electrical friction, I mean resistance, एक डिवाइस में over time build up होती है. Well, जब electrons resistance से टकराते हैं, they generate heat. It's exactly like physical friction, जब आप अपने हाथों को एक साथ तेजी से रब करते हैं. इसे ही हम heating effect of electric current कहते हैं. फॉर्मूला है H equals I squared RT. यानी हीट डायरेक्टली डिपेंड करती है करंट के स्क्वायर पर, रेजिस्टेंस पर और कितने टाइम यानी टी के लिए फ्लो हुआ उस पर. जितनी ज़्यादा रुकावट और जितनी देर तक रुकावट उतनी ही ज़्यादा गर्मी. The really fascinating part is how we harness this heat for our benefit. नोट्स में ना 2 काफ़ी ब्रिलियंट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दिए हैं. पहला है हमारा क्लासिक इलेक्ट्रिक बल्ब. इसमें एक टंगस्टन फिलामेंट होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट रिडिकुलसली हाई है, अराउंड 3380 डिग्री सेल्सियस. ये इतना हीट अप होता है कि लिटरली लाइट इमिट करने लगता है विदाउट मेल्टिंग. दूसरा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक फ्यूज. इसका लॉजिक ना बिल्कुल ऑपोजिट है. इसमें एक स्ट्रिक्टली लो मेल्टिंग पॉइंट का वायर यूज होता है. जैसे ही डेंजरस एक्स्ट्रा हीट आती है ड्यू टू हाई करंट, ये मेल्ट होकर तुरंत सर्किट ब्रेक कर देता है, प्रोटेक्टिंग आवर एंटायर होम फ्रॉम शॉर्ट सर्किट्स. प्रीटी जीनियस, राइट? और जब हम इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कंज्यूम होने का रेट मेजर करते हैं, दैट इज व्हेन वी गेट इलेक्ट्रिक पावर. इस टैब्यूलर स्लाइड में सारे की मैथ चंक्स क्लियर कट सॉर्टेड हैं. बेसिक फॉर्मूला है P equals VI, मीनिंग वोल्टेज टाइम्स करंट. अब अगर हम ओम्स लॉ यानी V equals IR को इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो हमें 2 और कन्वीनियंट फॉर्म्स मिल जाती हैं, P equals I squared R एंड P equals V squared over R. सबका स्टैंडर्ड SI यूनिट वॉट होता है. एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स क्विकली सॉल्व करने के लिए इन 3 फॉर्मूलाज का लॉजिक समझना इज एब्सोल्युटली क्रूशियल. And here it is, the perfect visual recap of our entire journey today. एक ultimate formula sheet सीधा हमारे handwritten notes से. Think about it, हमने start किया था एकदम basic से, Q equals NE से. फिर हम current and voltage पर गए. उसके बाद हमने resistance का nature समझा through Ohm's law. और finally heating effect और power formulas तक अपना सफ़र तय किया. ये एक सिंगल स्लाइड लिटरली आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने के लिए एक एब्सोल्यूट गोल्ड माइन है. ओके, सो हमने इलेक्ट्रॉन का बेसिक फ्लो तो ब्यूटिफुली मास्टर कर लिया, लेकिन यहाँ मैं एक माइंड बेंडिंग सवाल छोड़कर जा रहा हूँ आपके लिए. इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ना प्रैक्टिकली एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं. सो व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स व्हेन मैग्नेटिक फील्ड्स एंटर द चार्ट? ये फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स आखिर कैसे एक मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करते हैं अपने सराउंडिंग स्पेस में? वेल, दैट इज अ वाइडली फैसिनेटिंग स्टोरी फॉर आवर नेक्स्ट एक्सप्लेनर. तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग. इन फॉर्मूलाज को एक बार खुद लिखकर जरूर देखिए एंड स्टे क्यूरियस. कैच यू नेक्स्ट टाइम.